এই ভিডিଓରେ ପଢ଼ିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ। ପ୍ରଥମରେ ସଂଖ୍ୟାରୁ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପରୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଘାତାଙ୍କ ଓ ଘାତ ରାଶି। ଘାତ ରାଶି ବିଷୟର ଯେଉଁଟାକି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆମର ଅଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ। ତ ଆମର এই ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ କାହିଁକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବ, ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କେମିତି ତାହାକୁ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପଢ଼ିବା ବୁଝିବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କ'ଣ ହେଉଥିଲା? କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତ କେତେ ଥିଲା ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥିଲା ଏତିକି ପାଖାପାଖି 21ଟା ଶୂନ। ପାଖାପାଖି କେତେଟା? 21ଟା ଶୂନ। 1 2 3 4 5 6 7। ତ ଆମର ଟୋଟାଲ 21ଟା ଶୂନ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ଯାହାକି ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିବା ବୁଝିବାରେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କ'ଣ ହେଉଥିଲା? କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତ ଜଣେ ବି ଯଦି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଜଣେ ଦେଖିବ, କ'ଣ ସେ ବୁଝିପାରିବ ନା ପଢ଼ିପାରିବ? ଆମେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ତାପର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା? କେବେ ପଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ କି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତ କେମିତି ଆମେ ତାହାକୁ ପଢ଼ିପାରିବା? ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେମିତି ପଢ଼ିପାରିବା? ତ ସେଇ ପଢ଼ିପାରିବା ପାଇଁ ଆମର ପଢ଼ିପାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଲିଖନ ଅଛି। ଯେଉଁଟାରେ ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ଲେଖିବା ହେଲେ ଆମେ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା। ତ ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଲିଖନଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଲିଖନଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ। ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲେଖନ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାମାଣିକ ପଦ୍ଧତି। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାମାଣିକ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ କେମିତି ଲେଖନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତ ଦେଖ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛେ, ଧରାଯାଉ 480, ଯେଉଁଟା ଆମର ବହିରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି 480କୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପରେ ଲେଖିବା? କେଉଁ ରୂପରେ ଲେଖିବା? ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପରେ ଲେଖିବା। କାହାକୁ? 480କୁ। ଦେଖ, 480କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପରେ ଲେଖିବା ଆମକୁ କେତୋଟି ଷ୍ଟେପ୍ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କେତୋଟି ସୋପାନ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ କେତୋଟି ସୋପାନ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତ ସେ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର କେଉଁଟା ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ଆମର ଏଇ 480ରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ? ଆମର ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଉଛି 48। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଦଶମିକ ରୂପରେ ଲେଖିବା। ତ ଆମେ 48କୁ ଆମେ ଦଶମିକ ରୂପରେ ଲେଖିବା। ତ ଦଶମିକ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଲେଖିବା, ଆମେ ସେହି ଦଶମିକଟା ଯେଉଁ ହେବ ସେଟା ଦଶକାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା। ଦଶାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା 48 ଅଛି,
या दशांश परिणत करवा। आमको आउ गोटे कथा मन रख पड़ो दशमिक पूर्वर केवल गोटे संख्या रखा दशमिक पूर्वर गोटे अंक रखा दशमिक पूर्वर आम गोटे अंक रखा। तो यहाँ जो 48 होची 48 टाक गोटे अंक रखा माने कौन यहाँ जो दशमिक पूर्व 4 रखा ठीक अच्छे। तो ये आम कौन कले दशमिक रूप में आम दशांश एटा दशांश रूप में आम लिखिले दशांश रूप में आम लिखिले तापर आमको ये के लिखा पड़ो जेहेतु ये आम दशमिकटा देचे दशांश रूप नहीं तो ये आमको 10 गुणा पड़ो तापर ये ठीक अच्छे। तो ये 48 टाक आम लिखिले 48 टाक आम दशमिक रूप में लिखिले 4.8 ठीक अच्छे। तापर आम कौन करवा लिख सारे तापर ये आमर आउ गोटे शून्य अच्छी अर्थात ये आमर 48 को 48 10 सहित गुणन है 48 के सहित गुणन है 10 सहित गुणन है आम 48 टा 4.8 गुणन 10 अच्छी। तो आम 480 टाक केमती लिखिपर 4.8 गुणन 10 तो आम केमती लिखा 4.8 गुणन 10 घात 2 10 उपर 2 घात 10 उपर 2 घात। तो यहाँ है आमर कौन प्रमाणिक रूप ठीक अच्छे। प्रमाणिक रूप आम कौन करवा दशमिक रूप में लिखा दशांश भी हो पार तापर सेटा शतांश भी हो पार कि ताठू बेसी भी हो पार। तापर सेकेंड हूँ दशमिक पूर्वर गोटे अंक रखा ये दशमिक जो बिंदु देवा दशमिक पूर्वर गोटे ही अंक रखा हेले तापर आम ये 480 आम जानिले एतिकी। तो प्रथमे दशमिक लिखा पूर्व माने आउ गोटे प्रथम सोपान भी आउ गोटे आम कहीपर सेटा हूँ कि आम संख्या एवं शून्य को अलग करवा। तो यहीटा आमर 1 नंबर पॉइंट एटा हूँ 2 नंबर पॉइंट एटा हूँ आमर नाली लिखले जना पड़ो 1 नंबर पॉइंट एटा हूँ आमर 2 नंबर पॉइंट एटा हूँ आमर 3 नंबर पॉइंट एटा हूँ आमर 4 नंबर पॉइंट आम केमती करवा। तो आम ये 4टी बिंदु को आम मन रखा ये 4टी सोपान को आम मन रखा और ये 4टी सोपान को व्यवहार करी ही आमे करिबा। तो चलो गोटे संख्यार आमे प्रमाणिक बाहर करिबा। कहार बाहर करिबा एई पृथ्वीर वस्तुत्वर जो आम पृथ्वीर वस्तुत्व देइछि ए वस्तुत्वर आमे प्रमाणिक रूप बाहर करिबा। प्रमाणिक रूप कहार बाहर करिबा ए पृथ्वीर वस्तुत्व जो देइछि तार प्रमाणिक रूप बाहर करिबा। तो पिला माने एठी गोटे कथा नजर रख आमे वर्तमान आमे कोन कहितले आमे प्रथम सोपान 1 रे आमे कोन करबा संख्या और शून्य को अलग करबा। तो एठी आमे कोन करबा संख्या और शून्य को अलग करबा। प्रथम सोपान आमर कौन होची संख्या और शून्य को अलग करबा। तो आमर संख्याटी केते एठी पिला माने देखो संख्या केते एठी आमर संख्या होची 5 9 7 6 7 अलग करवा आम कौन एटा काटिक कोड़े चिरिकी फिंगी देवा कि ना आम कोड़े काटिक चिरिकी फिंगी पारिबानी। तो आम अलग करवा अर्थ होची आम एठी गुणन एठी 10 एठी आम गुणिबा केते एठी गुणिबा केते एठी आमर केतेटी शून्य अछि 21 टी शून्य अछि। तो आम एठी 21 टी शून्य 2 3 4 5 6 7 ठीक अछि माने 7 जोड़ा 3 3 1 2 3 4 5 6 7 7 3 21। तो ये आम 21 टी शून्य अच्छी गोटे केते शून्य अच्छी 21 टी शून्य अच्छी ओके। तापर आमर द्वितीय सोपान कौन कहूँ सोपान 2 आमर कहूँ दशमिक रूप में लिखा कौन दशमिक रूप में लिखा कौन करवा दशमिक रूप में लिखा। दशमिक रूप में लिखा क्या लिखा दशमिक रूप में लिखा क्या दशमिक रूप में संख्या भाग को लिखा
दशमिक रूप लिखा संख्या भाग को संख्या भाग कौटा एटा संख्या भागटा को आम दशमिक रूप से लिखा तो संख्या भागटा को आम दशमिक रूप से लिखा केमिति लिखा दशमिक पूर्वर गोटे अंक रखा केमिति लिखा ये ता तले आउ गोटे दशमिक पूर्वर गोटे अंक गोटे अंक रहिबो कौन दशमिक पूर्वर गोटे अंक रहिबो तो वर्तमान आमे आम संख्याटी केते 5976 या को आमे दशमिक रूप से लिखा तो आमे डी कौन करवा दशमिक रूप से लिखा आमे एठी दशमिक पूर्व गोटे अंक रहिबो एटा गोटे अंक अच्छी माने दशमिकटा आमर रहिबो एठी ठीक अछि तापर आमे एठी गुणन करवा दशमिक जेहेतु आम ये तीन टा संख्या पर आम दशमिक चिन्हटी देचे अर्थात आमको ये केते गुणा पड़ो 1000 गुणा पड़ो जदि आम दशमिक एक गोटे जगह दे दशांश होता 10 गुणी था दुईटा संख्या पर देते आमर 3 शतांश होता तापर एटा हूँ शतांश गोटे बेसी अर्थात आम 1000 गुणा पड़ो 1000 गुणा ये पड़ो तापर आमर जो यही शून्य गुड़ाक अच्छी युड़ाक आम लिखा केतोटी लिखा 21 शून्य 1 2 3 4 5 6 7 केतोटी शून्य ये 21 शून्य अच्छी 21 शून्य अच्छी तापर आम तापर सोपान 3 रे आम केमती लिखा सोपान 3 रे आम से ही संख्याटा को सोपान 3 रे आम एटा को लिखिदेले ए दुईटा दुई 3 सोपान को आम ये मिसेकी लिखिदे ठीक अच्छे तो तापर आम लिखा यही संख्याटा को पूरा लिखा आम केमिति यही रूप में घात राशि रूप में लिखा एठी संपूर्ण संख्या को घात राशि रे लिखा संपूर्ण संख्या को घात राशि रे लिखा संपूर्ण संख्या कहले कौटा एटा हूँ संपूर्ण संख्या कौटा संपूर्ण संख्या हूँ एटा हूँ संपूर्ण संख्या ठीक अच्छे यहाँ संपूर्ण संख्या कौटा एटा हूँ संपूर्ण संख्या या आम बर्तमान घात राशि रे लिखा घात राशि आम लिखा घात राशि आम केमती लिखा तो घात ये जो संपूर्ण संख्या अच्छी ये संपूर्ण संख्या को आम घात राशि केमती लिखा तो आम एटी आरंभ कर दीचे लेखाटा 5.976 आम लिखिदेले ठीक अच्छे घात राशि एठी आमर कौन एठी आम देखुचे आधार एठी आमर केते अछि 10 आधार अछि एठी आमर आधार केते अछि जेहेतु 00000 रही तो तार आधार आम 10 आधार अछि आमर समुदाय केतोटी शून्य अच्छी एठी शून्य अच्छी आमर केतोटी एठी शून्य अच्छी 21 आउ एठी शून्य केतोटी अच्छी 3टी 21 तो एटा आम एटा केते 3 गुणन एठी केते 21 एठी केते 21 शून्य अच्छी तो आमको एटा लिखिले केते हबो 21 आम एटा लिखिले 5.7 गुणन एतिकी एटा हबो 24 एठी आम को नियम उपयोग कले घात राशि गुणन नियम एटी कौ नियम करले घात राशि गुणन नियम ठीक अच्छे पिला माने जो आम पढ़ा या पर आम करवा अभ्यास कार्य 4.3 सेठी यही प्रमाणिक रूप से करा जाए ठीक अच्छे तो यहाँ आम कौन पढ़ले वैज्ञानिक पद्धति रे संख्या लिखन आ वैज्ञानिक पद्धति रे लिखन को कौन कह जाए प्रामाणिक रूप कह जाए आ केमिति आम प्रामाणिक रूप लिखिले ताहा एठी आम वर्णना करके लिखिले 3टा सोपान रे आम करले ठीक अच्छे ये 2-3 सोपान को आम गोटे सोपान 2 रे कर देचे ठीक अच्छे तो तुमको ये 3टी सोपान रे ही लिखा पड़ो आईटा जो है आमर यहाँ गोटे घात राशि कि नहीं यहाँ गोटे घात राशि एटा 10 घात राशि रूप में प्रकाश कराई है ये जेहतु घात राशि सहित संलग्न अच्छी से घात राशि रूप में प्रकाश करा तो तापर आम जानिले संख्यारू केमती प्रामाणिक रूप प्रकाश करवा वर्तमान आम प्रामाणिक रूप केमती संख्यार परिणत करवा आमर ये गोटे प्रामाणिक रूप देती एतिकी या आम केमती संख्यार करवा तो संख्यार करने आमको प्रथम
सोपान 1 होची आमर दशमिक संख्या को भग्न संख्या रे परिणत करवा। भग्न संख्या रे परिणत करवा। भग्न संख्या भी सेटा दशमिक भग्न संख्या। तो दशमिक भग्न संख्या क्या कह जाए जार हर 10 100 बा 10 घात विशिष्ट थाए। 10 घात विशिष्ट, ठीक अच्छे, 10 घात विशिष्ट बा 10 आधार विशिष्ट भी आम ये कहीपर। 10 आधार विशिष्ट, 10 आधार विशिष्ट, घात तो नुहे आधार विशिष्ट। 10 आधार विशिष्ट जदि तार हरटा 10 आधार विशिष्ट हो तो प्रथम सोपान। तो ये आम जो दशमिक 1 पॉइंट अच्छी ताकू जदि दशमिक संख्या को आम कले कौन हम 43, ठीक अच्छे, एतकी है। सोपान 2 रे आमे कौन करिवा। सोपान 2 रे आमे ये जो 143 रहा वर्तमान 106 तापर एटा कौन 10 रे 2 तो एटा को आमे वर्तमान लिखि दे परिबा 10 एतकी। तो गुणन ये कहते 4टा 0, ठीक अच्छे। दशमिक संख्या को प्रथमे दशमिक संख्या को दशमिक भग्न संख्या रे प्रकाश करिवा तापरे आमे ए प्रक्रिया करी दिबा, ठीक अच्छे।